मैं आपको एथिक्स नहीं सिखा रही हूँ. Please try and understand my point. We are actually showing the other side of the coin. Exactly. हाँ. ये आर्मी कॉलोनी इसी रास्ते से आएगा. बेस कैंप. हिंदी हिंदी समझते हैं आप? भर्ती होना है. हाँ हाँ इस तरफ. Shaheen, get in the car, Baba. Sir, elections का स्टोरी से क्या लेना देना? No, sir. I'm still telling you the same thing. We should cover more of the Jawans and less of the circuit house and their facilities. People would actually love to know more on their stories. But sir, there's a strong chance. I mean, copied, sir. Copied, Kabir. Okay, Kabir. Bye, Kabir. Raghu, yaar. तो Miss Journalist now is a senior investigative reporter. Promotion हो गया. हाँ, from a contributing writer to a feature writer. Wow, breaking news. Shut up. और तुम? वहीं के वहीं. Unsung hero. Oops, I mean the fact checker. हाँ हाँ जहाँ भी हूँ तुमसे तो अच्छा ही हूँ. At least we go by a strong background research. और तुम लोग breaking news के लिए कुछ भी. Yeah, I agree that there are meaningless stories. But then there is an alternative media altogether. And there are good stories too. And then there are those stories which are just made up out of nowhere. That's just how you perceive. That's how I perceive. Perception. अरे हमारे ethics को हुआ क्या है? The first thing any journalist needs to make sure Is the information likely to be public, right? And if it's not likely to be public, then you guys directly jump onto that fictional point of your ethics where it says, wait a minute, is the lack of access to the data a story in itself? TRP. ओरिस्सा में TRP. एक सेकंड. ओरिस्सा में दिन दहाड़े एक आदमी ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी. तो जनाब मान लो कि खबर ये है. लेकिन हमारे देश में इसे इस तरह से बताया जाएगा. ओरिस्सा में दिन दहाड़े एक मुस्लिम ने एक हिंदू की हत्या कर दी. या फिर एक हिंदू ने एक मुस्लिम की हत्या कर दी. That is fucking propaganda journalism. Exactly, that's the issue. And इसी वजह से हमारे देश में धर्म के नाम पर दंगल शुरू हो जाते हैं. And you know what happens next? People start forming their own irrational opinions and start avoiding the sine qua non in our democracy. तो ये जो इस तरह से खबरें बताने वाले लोग हैं, ये उनका TRP driven mindset है, हमारा नहीं. Yeah, right. Mindset. I almost forgot that we are living in a democratic country. और आजकल तो सभी के पास में opinions हैं. Where exactly are these people drawing the line? Yeah, right. हाँ, I mean look at me, from a regular columnist to a contributing writer to a feature writer. कल क्या पता शायद EP भी बन जाऊं. देख, जितने ऐप स्टोरीज उतने रेटिंग्स, जितने रेटिंग्स उतनी रैंकिंग्स, authorities and the promotions. It's a long process and there's no shortcut, and that's how I want to do it. Stop it, yaar, Raghu. Sadly, na, I rely on my own methods to civilize the world.
वैसे जिन मेथड से आप आगे बढ़ रहे हो ना, इंशाल्लाह झंडे गाड़ के न्यूज एंकर बनना, न्यूज एंकर बन के झंडे गाड़ना भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। थैंक्स। कौन से मेथड्स? कम ऑन, यू नो, मेथड्स। Raghu, What is wrong with what you? is wrong with you? How could you say something like this? I was just kidding, Baba. I'm gonna make this a bloody headline. I'm sorry. इतनी छोटी सी बात की हेडलाइन। Yes, crime reporter Raghuveer Singh is accused for molesting his fellow senior crime reporter Shaheen Khosla because of his lack of argumentative skills. Wow. You just twisted the facts. This is extremism. वैसे इस कबीर की कंपनी में तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही हो। Shut up, Raghu. I'm way beyond this jingoistic journalism. तो तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे लाइटर दो। ये बाजू बंदड़ी डूम लड़ उलझी जाए रे, ये बाजू बंदड़ी डूम। क्या बात है, आज जगत सिंह जल्दी आ गए? सतरंगी लहरी यारो पल्लू लहराए। जे बंजर जमीन और जे बंजर लोगों के बीच जब सांची की मीठी सी आवाज सुनाई पड़े ना, तब ये जगत सिंह जल्दी ना आएगा ना, तब ये जगत सिंह चाहे बस जाएगा। की बिंदिया जैसी लागे। छोड़ ना, वो देख लेवेगी। अरे पहले मैं तो तन्ने देखूं जी भर के। छोड़ पगले। और वैसे भी ज्यादातर ना बच्चे माँ बाप पे जावे, माँ बाप बच्चों पे ना। फूतरी खूबसूरत जगत सिंह माखन ना रोटी पे लागे, मारे पे ना। माखड़ भी कोई लगाने की चीज है बावड़ी? अगर तारे पे कुछ लगाना ही है तो जे क्यों ना लगाऊं? बींदने लगा है बिल्कुल। जो बींदनी लागू तो ब्याह क्यों ना कर लेवे मारे से? देख सांची, सही चीजों को ना सही वक्त पे करना जरूरी है। आज तो बींदनी लाग रही है, अगले महीने ब्याह भी हो जाएगा। अगले महीने करते करते पूरा साल बीत गया। कब तक इस टापरों और इन टापरियों को संभालती फिरूंगी? थक गई हूं। अब ना होता मुझसे ये लाना ले जाना रोज रोज। मिठा गाड़ इतिया ना तू, मिठा बोर्ड भी लिया कर। भूल गई तारे बालम और मारे भाईसा के साथ क्या हुआ था? रेफ्यूजियों ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था, याद ना रहा तुझे? हाँ, सब याद है, सब याद है। और याद तो मैंने ये भी है कि तू उसे छोड़ने वाला था। शुरुआत में सब सही था, पर अब हाँ, भड़वा बन गया है तू, भड़वा। तो स्वागत है आपका हमारे शो पे और इस छोटे से सेगमेंट जिसे मैं कहूंगा नजरिए को देखने का। और आज का पहला सुविचार है कि सत्य और तथ्य में बहुत बड़ा अंतर है। तथ्य सत्य को छुपा सकता है। फैक्ट्स कैन ऑब्सक्योर द ट्रूथ।
has to be something with these refugees. And these look. दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ? चलें? तुम कभी सुधरोगी नहीं ना? तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हमारे शर्लॉक कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया की बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ हमारे मतलब की बात करें? हाँ. Do you mind working together on a feature? Only if this is without any factual errors. Trust me, this might just be your next best story. We'll decide that later. तो बेस कैंप से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, यहाँ का आखिरी गांव, 60 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर. दीवानकोट? राइट. एक सेकेंड, ये वही जगह है ना जहाँ पर एक पूरी कौम का धर्मांतर हुआ था? पोस्ट कन्वर्जन्स? अब उन्हें पश्तून्स कहते हैं, और कुछ मीडिया लीड्स के हिसाब से तो ऑल दिस इज जस्ट अ मिथ. व्हाट्स द कैच? दीवानकोट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना बॉर्डर के इस साइड बिलोंग करते हैं ना उस साइड. रेफ्यूजीज? who have always been accused for their involvement in a transnational organized crime. To be precise, ह्यूमन ट्रैफिकिंग? you know, facts के मुताबिक पिछले 2 सालों में करीब 35 लोग गायब हो चुके हैं. And the story doesn't end here, Shaheen. You know, one day, the entire mob publicly beheaded 2 of the locals. Why? Religious persecution. लेकिन फैक्ट ये है कि ये 2 लोग सिर्फ कन्वर्ट होने को रेडी नहीं थे. काफिर बोल के हलाल कर दिया इन्हें. और पुलिस? कॉप्स. एक हेड पुलिस ऑफिसर आया था इन्वेस्टिगेशन के लिए और मारा भी गया. क्यों? क्योंकि विटनेस था. और ये पूरा हादसा हुआ कब? ये अभी करीब 15 दिन पहले की ही बात है. So wait a second. This is classified information. And nobody has featured this incident yet. ऐसे ही थोड़ी ना बोला था कि this might just be your next best story. Why? Elections. फोकस शिफ्ट करना तो कोई हमारी मीडिया से सीखे. People aren't getting to know what they're supposed to. वो वहां तेरा इंतजार कर रही होगी. अर्ध सत्य अक्सर एक बड़ा झूठ होता है. Half a truth is often a great lie. You know what I was thinking? एक सेकेंड. रेफ्यूजीज धर्म के नाम पर लोकल्स को मार सकते हैं, यहां तक तो मान लिया. But how could they possibly persecute cops? I mean, someone who's at that high authority and well equipped. ये जो 2 लोग
और पुलिस वाला मारा गया, what if this entire incident is about political repression? Shaheen, are you really caring about what it looks like rather than what it is? Seriously, what makes you think that? Elections? Whistleblowers के बारे में तो सुना ही होगा. Come on, Shaheen, I deal with reliable sources, okay? What I'm just trying to tell you is... You need to have a better descriptor. Fine. What? Patience. What do you see? What? Come on, what do you see? There's a black dot. Exactly. That's the point. You wanted me to have a better descriptor? Was that the best possible form of an argument? You cannot antagonize an entire ethnic group because of history. Like, I'm not gonna conclude anything before a strong ground research. Then don't! Shaheen, let's just get back to our matter of concern. हाँ? हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आतंक फैला रहे हैं. We are talking about these extremists here, okay? And because they are that, it'll get difficult even to reach there. Forget about getting access to the data. Fuck. Come on. Well. Looks like access has been denied already. मुझे ना ज्ञान से ज्यादा अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है. मिलेगी? थोड़ी. Copied. Thank you. Fuck. Looks like we got help. मुझे वहां पर एक गांव नजर आ रहा है. अरे कोई है यहाँ पे? हेलो? अरे ओए, आपका क्या नाम है? घर पे कोई है? लाओ मुझे दो. अरे थोड़ा पानी मिलेगा? स्माइल करो. आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ. आप बिंदिया नाम है मारी छोरी का.
मारी छोरी बोल ना सके। सॉरी। पानी के लिए शुक्रिया। भाई जी, चेक पोस्ट कने छोड़ दोगे? ओ बस को आने में टाइम है। मुने मारी छोरी को छोरी लोकल्स हैं, चेक पोस्ट तक छोड़ना है। आप बैठिए। तो जर्नल में तुमने क्या देखा? जर्नल में I saw a black dot, Diwan code written on the top left, human trafficking on the top right, and refugees and locals at the bottom. And the white space. Really? Yes. You saw the exact same thing that I wanted you to see. The black dot. And that's being one-sided. The moment you realize you're chasing the wrong story, that's when you'll find yourself at the dot. Perception is a very dangerous game, Mr. Raghuveer Singh. You don't want to enter Diwan Court, do you? I don't want to conclude anything before a strong background research. I'd rather trust my instincts. Raghu, heads up. I think they're refugees. Raghu, we gotta go. Shine, keep rolling, keep rolling, keep rolling. बहन जी, आप घबराना मत और बच्ची को छुपा दो। Come on, Raghu, let's go. Let's go. You're rolling. Huh? Start the goddamn car. Just start. भाई जी, भाई जी। जैन जी खिड़की बंद करो। आप क्या कर रहे हो? खिड़की बंद करो। रघु साधिका, रघु साधिका यार। Just accelerate. Just accelerate. बहन जी, हम किस तरफ जा रहे हैं? दीवान कोट मेम साहब। मेम साहब, वो लोग ना मेरी छोरी को ले जाना चाहे। देखा, कहा था ना मैंने,
इन लोगों को चैन नहीं आएगा जब तक ये गांव वालों का सौदा ना कर दे। बहुत बड़ा धंधा हो चुका है ये अब। जी आप घबराइएगा मत, हम आपको चौकी तक सही सलामत पहुंचा देंगे। खालिद मियां, कम इन खालिद मियां। हेलो खालिद मियां, अभी अभी हम पर किसी ने अटैक किया है और हमारे पास उसका एविडेंस भी है जो मैं आपको अपलिंक से ट्रांसफर कर रहा हूं। आप प्लीज उसको डिकोड कीजिए और मुझे तुरंत रिपोर्ट कीजिए प्लीज, इट्स वेरी अर्जेंट। बहन जी, आपको इस घटना के बारे में सब कुछ बताना होगा कैमरा के सामने, और विस्तार से। आपको जो कुछ भी बताया इन लोगों के बारे में और आपने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ। जी ये चौकी यही है ना? आगे से ना दाएं मुड़ जाना है बस। आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपको थोड़ी देर में बाहर बुलाती हूँ, हम आपकी मदद करेंगे। ओके जी मैम। Come on, come on. We got a goddamn evidence. And guess what? We have the tablet of the year. Really? हाँ यार, कम से कम इन लोगों के लिए ही सही। I don't know, man. Shaheen, you need to watch this. You didn't want me to accuse these people, है ना? They attacked us. Let's not spare these bastards. मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। Let's break the news. हेलो। हाँ खालिद मियां। ऑडियो सुन लिया है, मुझे लगता है कुछ। हेलो 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 खालिद मियां। हेलो, आवाज आ रही है खालिद मियां? हाँ, ये बंदे बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। शायद अपनी बेटी का नाम ले रहे हैं सर। मुझे लगता है कि ये लोग हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो मदद मांग रहे हैं जनाब। ये बार बार एक ही चीज का जिक्र कर रहे हैं कि वो गुनहगार नहीं है, पर बल्कि उनकी खुद की बेटी को गांव वालों से छुड़वाने आए हैं जो उसे सरहद के उस पार ले जा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जनाब, आप सुन पा रहे हैं? क्या खालिद मियां, आप ये क्या बोल रहे हो? आप सही सुन रहे हैं जनाब। हेलो, I think he's right. आप सुन पा रहे हैं कि ये लोग हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो मदद मांग रहे हैं। इसलिए तो उन्होंने गोली नहीं चलाई। It wasn't a firefight. Raghu, we were chasing the wrong story. We are at the dot.
वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि नहीं बन सकता क्योंकि कोई उसे देख नहीं पा रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का ये शो समाप्त होता है। शब बखैर।